Welcome to Kadam Study Center. So today we will going to start subject Advanced C Programming of semester 2, and today we start chapter number 2 of Advanced C Programming, that is strings. Okay, we are going to start from chapter number 2, not from chapter number 1. Okay, first we will learn chapter number 2, then we are going ahead. Okay, so let's start the today's lecture. Okay, so first topic is chapter name is string. Okay, wait, I will select pen. Okay, chapter number 2 is strings. Okay, so what is mean by string? So string is a sequence of zero or more character enclosed by double quotes. Okay, string is nothing but a sequence of zero or more number of character enclosed by double quotes. Okay, a string in is an array of character terminated by special character slash zero. Okay, string is not string is nothing but array of character terminated by special character by slash zero. It is slash zero is known as null character. Okay, example, double quote hello and terminated by slash zero. Okay, this is example of string. Then what is mean by string variable? Okay, so string variable is an array of character that we store in string literal. And declaration, what is mean by declaration? A string variable is declared in the same way as one dimensional array with data type character. Okay, then syntax for string और string declaration. Okay, character, string name, size. Okay, आपने array chapter तो पढ़ा ही होगा, उसमें आपको पता ही होगा अरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और अरे हम कैसे लिखते हैं. सो अरे में हम सिंटैक्स लिखते थे, उसमें हम साइज इनपुट करते थे. वैसे ही यहाँ पे आपको कैरेक्टर, स्ट्रिंग नेम, साइज यहाँ पे आपको इनपुट करनी है. फॉर एग्जांपल कैरेक्टर सिटी साइज ऑफ 20, कैरेक्टर नेम साइज ऑफ 10. ओके, साइज मतलब इंडेक्स की साइज होती है वो. अभी इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड n-1. ओके, एंड स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय स्लैश 0. ओके, so next topic is string input and output function. Okay, there are various string input and output function like scanf, putf, getf, printf. Okay, so we will see one by one. First function is scanf. So what is mean by scanf function? Okay, we already learn in first semester, but in this chapter we had, okay, in this chapter we will learn this scanf function. Okay, we can use scanf function to read a string like any other data types. Okay, scanf function हम किस लिए यूज करते हैं? वेरियस टाइप्स के स्ट्रिंग के लिए. ओके, लाइक किसी भी डेटा टाइप की स्ट्रिंग हो उसे रीड करने के लिए हम scanf फंक्शन यूज करते हैं. ओके, इट टेक्स ओनली फर्स्ट एंटर वर्ड, मतलब जो फर्स्ट एंटर वर्ड होगा वो scanf फंक्शन डिटेक्ट करेगा. ओके, दिस फंक्शन डज नॉट अलो स्ट्रिंग विच डज नॉट अलो स्पेसेस, मतलब जो सपोज ये वर्ड है HE, ओके वेट, HELLO हेलो वर्ल्ड. ओके, WORLD. ओके, हेलो वर्ल्ड में से सिर्फ हेलो रीड करेगा, वर्ल्ड नहीं, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है. तो स्ट्रिंग मतलब जो स्कैनफ फंक्शन है वो स्पेस नहीं अलो करता. ओके, सो अगर ये वर्ड ज्वाइंट हुआ, सपोज हेलो वर्ल्ड ज्वाइंट वर्ड है, तो वो रीड कर लेगा. ओके, द परसेंट एस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ स्ट्रिंग. अभी तक हम इसके लिए परसेंट डी लेते थे इंटीजर डेटा टाइप के लिए, फ्लोट के लिए परसेंट एफ लेते थे. अभी स्ट्रिंग के लिए क्या लेना है? परसेंट एस. ओके, इन स्कैनफ फंक्शन वी डू नॉट यूज एड्रेस ऑफ. ओके, हम एड्रेस ऑफ लिखते थे, देखो स्कैनफ में हमें अभी एड्रेस ऑफ नहीं लिखना है. वी डू नॉट यूज एड्रेस ऑफ बिकॉज हियर स्ट्रिंग इज अरे ऑफ कैरेक्टर. यहाँ पे क्या दिया गया है? स्ट्रिंग. सो एड्रेस ऑफ की जगह पे हमें क्या लिखना है? str. ओके, वो मैं आपको अभी एग्जांपल में बताता हूँ. स्ट्रिंग इज ऑलरेडी अ पॉइंटर टू अ फर्स्ट कैरेक्टर. ओके, लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ scanf. नहीं, एग्जांपल ऑफ scanf. ओके, example of scanf, hash include stdio.h, void main starts from curly bracket as you can know, then character string size of 10. मैंने string का syntax अभी आपको बताया, character string str size of 10 semicolon, then printf slash and enter string semicolon. then scanf में देखो यहाँ पे परसेंटेज लिखा गया है, then
यहाँ पे एड्रेस ऑफ की जगह str लिखा गया है, ओके इस तरह से। देन printf enter string is equal to percentage double quote complete comma str semicolon and this is end of program, okay, as you can know. Then second function is getS function. So what is mean by getS function? Wait, getS function. The function reads the character from standard input and store them as a C string until a new line character or end of file is reached. GetS function reads the character from standard input. Okay, firstly, getS function reads the character from standard input and store the character in C string until a new line character or end of file is reached. Okay, गेटस फंक्शन अलो स्ट्रिंग विथ स्पेसेस। अभी स्कैनफ फंक्शन स्पेसेस नहीं अलो करता था, लेकिन गेटस फंक्शन स्पेसेस अलो करता है। ओके, सिंटैक्स गेटस इन ब्रैकेट वेरिएबल नेम सेमीकोलन। एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio.h void main curly bracket start character string size of 10 printf enter string scanf की जगह get str, ओके एंड printf as usual and this is close of end of program। ओके, आगे बढ़ते, wait, okay, this is third function, printf function। Okay, to print the string we can use printf with percentage specify। printf function does not allow to display every string on a new line। okay, printf function does not allow मतलब वो allow नहीं करता कि हर एक string new line पे display हो। okay, and the fourth and last function is putS function। okay, the putS function write the string to the standard output and automatically append new line character at the end। putS function क्या करता है, string लिख देता है standard output के लिए and automatically append new line character at the end, मतलब automatically new line character at the end में append कर देता है। okay, this is syntax for putS function, putS variable। okay, and then example of putS function। ओके, यहाँ पे scanf की जगह getS str लिखा और नीचे printf enter string then putS str semicolon। okay, and this is end of program। okay, hope that you will understand the four function। okay, input and string input and output function। okay, we will revise it one time। okay, wait, ओके, सो स्ट्रिंग हमने आज पढ़ा, उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल, डिक्लेरेशन, स्ट्रिंग सिंटैक्स एंड स्ट्रिंग एग्जांपल्स देखे। देन फोर फंक्शंस देखे स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट के। ओके, स्कैनफ, ओके, देन गेटस, देन hi friends, welcome to Kadam Study Center। So in this lecture we will continue our chapter of advanced C programming, chapter number 2, string। okay, as you can know we had start from chapter number 2, okay, that is string। okay, this is lecture number 2 of chapter number 2। okay, so let's start the lecture। okay, so in this lecture we see some string functions। okay, there are lot of string functions। okay, so what is meant by string function? The string function, the C string function are built-in function। okay, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्ट इन फंक्शन देखा ही होगा, बिल्ट इन फंक्शंस क्या कहते हैं, उसी तरह सी स्ट्रिंग फंक्शंस भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ओके, दिस फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। ओके, C string functions are used for various operation on string। okay, we have given some string in the program or in questions। okay, we perform various operations on string as given। okay, so we use string function to perform various operation। okay, some of most commonly used string function given below। okay, there are a lot of functions like 14 to 15 function, but we use only 5 to 6 functions in common life। okay, मतलब हम जो common, जो मोस्ट कॉमन फंक्शंस होते हैं वो 6 to 7 ही है, एंड देन अदर फंक्शन है टोटल ऐसे मिला के 12 से 13 फंक्शन है कुछ तो। ओके, वो उतने सारे हम यूज नहीं करते, लेकिन हम सबका यूज देखेंगे और जो ज्यादा यूज किए जाते हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। ओके, पहले हम जो ज्यादा यूज करते हैं उनके बारे में देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज str cat फंक्शन। ओके, इसी तरह से लिखना है strcat फंक्शन, str cat function। this function used to concatenate string। okay, this function is used to concatenate two strings। concatenate means join। okay, this function is used to join two strings। okay, this is syntax for this function strcat function के लिए ये आपका syntax strcat string1 and string2 semicolon। okay, then second function is strncat function।
So this function joined the first n character of string 2 to string 1. Okay, this is syntax strncat str1 str2 comma n. Okay, because n number of character joined to string 2 to string 1. For example, suppose we had two string. ये string 1 s1 is equals to hello. Okay, he wait. Okay, hello, and s2, suppose our string 2 is, ignore my handwriting, hello world. Okay, world. Okay, I hope that आपको समझ में आ रहा हो. These are two string hello and world. Suppose we input we use strncat function. Okay, strncat function. So what is the use of this function? This function join first n character of string 2 to string 1. जितने number of character हमें चाहिए उतने. Suppose we give input like two character, n is equals to 2. So these two characters are joined to string 1. So our output is H E E double L O and W O. Okay, like that. Okay, so next one is strcmp function. Okay, this function is used to compare the strings. Okay, strcmp function is used to compare the string. Okay, these are return value of strcmp functions. Okay, first one is if string 1 is less than string 2, then the return value is -1. String 1 is greater than string 2, then the return value is 1. String 1 is equals to string 2, then the return value is 0. Okay, like that. Remember this return value of strcmp functions. नेक्स्ट दिस इज सिंटैक्स फॉर strcmps. ओ वेट, यहाँ पे थोड़ा गलत है. इसके आगे आपको strcmp लगाना पड़ेगा. देन str1 कॉमा str2. ओके, लाइक दैट. str, सॉरी फॉर दैट टाइपिंग मिस्टेक. ओके, strcmp देन str string 1. आप कौन सा भी नाम दे सकते हो, str देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं. ओके, देन str2. ओके, like that. This is syntax for strcmp function. Okay, then fourth function is strncmp. Okay, compare the first n character of str1 and str2. Okay, compare the first n character of string 1 and string 2. Okay, this is syntax for strncmp function. Okay, strncmp in bracket string 1 string 2 and n, because n character compares होते हैं. Okay, n number of characters जितने आपको चाहिए उतने. Then fifth function is strcpy. So this function is used to, this is standard library function in C and used to copy one string to another string. Suppose we give input strcpy, we use strcpy function, then we copy second string to first. Okay, suppose our first string is hello and second string is world. So second string is copied into the first string. Okay, then sixth function is strncpy. Okay, simple है. The function copies first n character like that. जितने कैरेक्टर हमें कॉपी करने सेकंड स्ट्रिंग से उतने कैरेक्टर हमें n की जगह पे डाल देने. ओके, so this function is used to copy first n character of str2 into str1. Okay, then syntax, this is syntax for strncpy function. Then seventh one is strlen function. This function used to returns the length of string 1. Okay, this function is used to return the length of string 1. Okay, this function is used to calculate the length of string 1. This is syntax for strlen function. Okay, then strrev function. Okay, this function used to reverse the string. This is syntax for strrev function. strrev and string name. Okay, and last में semicolon. Okay, these are 8 functions that we are most commonly used in programming. Okay, and the other functions are some of general string functions given below. First one is stricmp function. So the function is used to case insensitive comparison of string 1 and string 2. Okay, case insensitive मतलब दोनों string के case same होने चाहिए. Okay, different case नहीं चाहिए. Case मतलब lower case and upper case. Suppose string 1 capital है तो string 2 भी capital ही होनी चाहिए. Okay, this is syntax for stricmp function.
Then again str and cmp. This function is used to case insensitive comparison of first and character str1 and str2, like string 1 and string 2. Again stri and cmp str1 str2 comma n. Okay, this is syntax for stri and cmp function. Okay, like that. Then str lwr. Lwr means lower. Str lwr function. This function is used to convert all character in lowercase in string 1. Suppose we have string given hello. Hello is in capital letters. So we use this function to convert the string in lowercase. Okay. Then str upr, like that str lwr, this function is used to convert the all character in uppercase in string 1 given string. Okay, this is syntax for str upr function. Then fifth one is strchr function, returns the character to the first occurrence of given character. Okay, इसका मतलब क्या है? सपोज str आपकी एक स्ट्रिंग दी गई है, str1 दी है आपको, HELLO. Okay, this is given string. Then we want to find first occurrence of given character. Suppose we give given character E. So this function is used to first occurrence returns the character first occurrence of given character. So this is E. This is first occurrence of E. Okay. So this is syntax. यहाँ पे B है, आप B की जगह कुछ भी character डाल सकते हो. Okay. Then strchr strchr returns the character to the last occurrence of given character, like that. Last occurrence कहाँ पे वो find करता है str rchr string 1 comma given character. Okay, these are some functions. Okay, that we are generally use in programming. Okay, I have tell about all functions in C string. Okay, so next topic is program based on string functions. अब हमने अभी जो functions देखे उनके ऊपर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, हम अभी वो प्रोग्राम्स हम देखेंगे. ओके, वेट, आई वांट टू ओपन विजुअल स्टूडियो. ओके, वेट, just wait for a minute. Okay, so let's see the program based on string functions. Okay, first question is, wait, हाँ कहाँ पे गए? Okay, first question is, write a C program to accept string and concatenate them. Okay, so what is mean by concatenate? We want to join the string. Okay, C program लिखना है किससे? string join करने के लिए, concatenate करने के लिए. Okay, so this is program in front of you. Okay, let's see the program in Visual Code Studio. Okay, रन करके देखते हैं हम. ओके, मैं आपको अब पहले प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से. ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच था. हाँ, ओके ओके, वेट. सो फर्स्ट hash include stdio.h as usual, then hash include string.h. ओके, ये हेडर फाइल हमें इनपुट करनी, क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या हेडर फाइल देनी है? hash include string.h. stdio.h क्यों देते हैं? क्योंकि printf scanf स्टैंडर्ड फंक्शन से, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हम printf scanf यूज करते हैं, इसलिए हम stdio.h देते हैं. देन अभी हमें एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, hash include string.h. why? Because we use string functions. Okay, like that. Then integer main, void main या फिर integer main ले सकते हो, लेकिन जब integer main लोगे तो आपको रिटर्न 0 देना है लास्ट में. ओके, सो integer main curly bracket से प्रोग्राम स्टार्ट. then we read, we initialize two strings. Okay, because we want two strings to concatenate them, to join them. Okay, so first string is character str1 size of 20. string का syntax पता है आपको, str1 एंड ब्रैकेट में आपको साइज देनी होती है, स्ट्रिंग की साइज कितनी चाहिए आप अपने हिसाब से साइज दे सकते हो, और यहाँ पे str1 नेम है, उसकी जगह पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो. ओके, अरे वेट, str1. ओके, देन कैरेक्टर str2 साइज ऑफ 20. ओके, टू स्ट्रिंग हमने इनिशियलाइज कर लिए. देन printf एंड scanf, printf एंटर स्ट्रिंग 1. scanf में देखो अभी आप, यहाँ पे हम परसेंट
डी लेते थे, लेकिन हम अभी परसेंट एस लेंगे. व्हाई? बिकॉज वी यूज स्ट्रिंग फंक्शंस. ओके, देन परसेंट एस कॉमा एड्रेस ऑफ लेते थे हम. यहाँ पे हमें एड्रेस ऑफ लेना नहीं है अभी, सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग का नेम str1, क्योंकि हमने यहाँ पे str1 दिया है. आप यहाँ पे जो दो देंगे वही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. ओके, देन अगेन प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग टू स्कैन एफ परसेंटेज कॉमा str2. देन फंक्शन यूज किया है, सिंटैक्स देखो, strcat in bracket str1 comma str2, then print concatenate string is percent s comma str1. str1 में str2 ज्वाइंट हो जाएगा. ओके, देन लास्ट में रिटर्न जीरो. वाई रिटर्न जीरो? बिकॉज वी यूज इंटीजर मेन फंक्शन. एंड लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम एंड. देन कंट्रोल एस फॉर सेव, देन ओपन टर्मिनल. ओके, अभी आपको आउटपुट निकाल के दिखाता हूँ. ओके, सो gcc filename dot c, I give filename cat.c, enter, then dot slash a dot exe. ओके, dot slash a dot exe. अभी ये मैसेज प्रिंट हो क्या है, देखो, एंटर स्ट्रिंग वन, हमें एंटर स्ट्रिंग डालनी है. सपोज वी इनपुट हेलो. ओके, डबल एल एच ई डबल एल, ओ हेलो, एंड एंटर स्ट्रिंग टू देंगे हम WORLD वर्ल्ड. ओके, देन एंटर. सो कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड. ओके, और एक एग्जांपल देखते, इसे रन करते. देन वेलकम वेलकम एंड एंटर स्ट्रिंग टू देंगे हम BCS. सो कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इज वेलकम BCS. ओके, लाइक दैट. ओके, देन let's see next question. Next question is write a C program to accept two string from user and check both string are equal or not. Okay, so हमें कंपेयर करना है स्ट्रिंग इक्वल है या फिर नहीं. so कौन सा फंक्शन है? strcmp, राइट. ओके, सो दिस इज प्रोग्राम मैंने पीपीटी में भी दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट रन करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा. अगेन हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच. स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हो स्ट्रिंग डॉट एच देना जरूरी है. देन इंटीजर मेन करली ब्रैकेट, एक इंटीजर हमने इनिशियलाइज कर लिया, रिजल्ट. ओके, रिजल्ट दो या फिर आपको जो चाहिए वो दो. आप आंसर भी दे सकते हो, ये देखो आंसर, लेकिन आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना. तो हम देखो, आपको याद होगा, हम जब यहाँ पे भी आपको आंसर करना पड़ेगा. ओके, हम जब एडिशन का प्रोग्राम करते तो ए बी दो वेरिएबल लेते एंड सी या फिर आंसर अनदर एक वेरिएबल लेते, बिकॉज वी राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी या फिर आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी. इसलिए हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, इंटीजर आंसर. ओके, देन टू स्ट्रिंग इनिशियलाइज करनी, कैरेक्टर स्ट्रिंग वन साइज ऑफ 20, character string 2 size of 20, then printf string 1 and string 2, scanf string 1 and string 2, and then write answer is equals to strcmp function. Okay, wait, oh मेरे से wait. Okay, then answer is equals to strcmp function string 1 comma string 2. Okay, because we have to compare two strings. देन इफ की कंडीशन चाहिए, हमें चेक करना है ना बोथ स्ट्रिंग इक्वल है या फिर नहीं. चेक करने के लिए हमें इफ की कंडीशन लगेगी. इफ आंसर इज इक्वल्स टू 0, देन printf both string are equal, else printf both string are not equal. if answer is not equal to 0, then else print both string are not equal, and last में return 0. this is curly bracket. end of program. control s for save, then open terminal, then gcc filename dot c, then dot slash a dot exe, enter string 1 hello, enter string 2, suppose we take world. so both string are not equal, दोनों string equal है क्या? नहीं. तो मैसेज क्या है? both string are not equal. मैं आपको दोनों string equal करके बताता हूँ. hello, again string 2 hello, यहाँ पे देखो both string are equal. okay, like that. so this is so we have taken two programs, okay, in this lecture, and two programs for your homework. okay, these two programs solve for homework. okay, आपको ये प्रोग्राम सॉल्व करके देखने,
सिंपल है, सिर्फ फंक्शन की जगह चेंज करना है। ओके, एंड यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग आएगी क्योंकि उसकी लेंथ फाइंड करनी है और स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। दोनों प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में आपको लेंथ फाइंड करनी है और एक प्रोग्राम में स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, तो दो स्ट्रिंग की जरूरत है क्या? नहीं, एक ही स्ट्रिंग आप ले सकते हो। ओके, str1 या फिर आपके हिसाब से स्ट्रिंग वन जो आपको नेम देना है वो। ओके, और strrev फंक्शन यूज करना है रिवर्स के लिए और लेंथ के लिए strlen फंक्शन। ओके, like that. So please solve this question for home friends. Welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will continue our chapter of advanced C programming and chapter number 2 strings. Okay, हमने स्ट्रिंग से चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले, उसका ये लास्ट लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। So today's topic is array of string in C. Okay, so what is mean by array of string in C? So let's see. An array of string is in C is essentially a collection of multiple string. Okay, where each string represent as a character array. Okay, simply array of string क्या है? एक array of string means एक collection of multiple strings है, मतलब हम मल्टीपल स्ट्रिंग एक कलेक्शन में डाल सकते हैं, वेयर ईच स्ट्रिंग रिप्रेजेंट एज अ कैरेक्टर अरे। ओके, देन सिंटैक्स फॉर अरे ऑफ स्ट्रिंग इन सी, कैरेक्टर अरे नेम। ओके, अरे नेम आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, एंड आर एम इज इक्वल्स टू s1 s2 अप टू sn। ओके, दैट मीन्स मल्टीपल स्ट्रिंग्स। ओके, सो हियर अरे नेम्स मीन्स नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आपको क्या देना है। ओके, आर मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स टू बी स्टोर, मतलब हम एक अरे में कितने स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ओके, 1 2 अप टू n। ओके, आर मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, maximum number of strings, and m means maximum number of character values that can be stored in each string। मतलब हम स्ट्रिंग की साइज लेते हैं, देखो लाइक str3 साइज ऑफ स्ट्रिंग साइज ऑफ 3, सो 3 साइज हुई स्ट्रिंग की, तो m मतलब क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन ईच स्ट्रिंग, सो दिस इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग m मीन्स। ओके, एंड s1 s2 अप टू sn स्ट्रिंग्स टू बी स्टोर, और कितने स्ट्रिंग हम स्टोर करते हैं। ओके, डिक्लेरेशन एंड अरे ऑफ स्ट्रिंग, अभी अरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, यू कैन डिक्लेयर एन अरे ऑफ स्ट्रिंग इन टू वेज। ओके, आप दो तरह से अरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। फर्स्ट इज फिक्स साइज फॉर स्ट्रिंग एंड सेकंड वन इज अरे ऑफ पॉइंटर टू द स्ट्रिंग। ओके, okay, so first one is fixed size for string. Okay, here you can define the size of each string and the number of string। इसमें आप क्या कर सकते हो? You can define the size of each string, हर एक string की एक size define कर सकते हो, and number of string, and आपको कितने string चाहिए। Okay, example character, दिस इज अरे नेम लाइक नेम, एंड 3 क्या है यहाँ पे? एक आप कितनी स्ट्रिंग ले सकते हो, नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक अरे में, सो 3 इज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग एंड 10 इज द साइज ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो 10 इज द साइज ऑफ स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको सिंटैक्स में बताया। ओके, आर एम हमने लिया था, सो 10 क्या है? साइज ऑफ स्ट्रिंग, मतलब आप 10 लेटर्स तक ले सकते हो स्ट्रिंग की साइज। ओके, सो here are example John, Jane and Doe. So let's see memory representation of an array of string। अभी क्या होता है ना, ये थोड़ा ब्लर है लेकिन आपको दिख रहा होगा। अभी क्या होता है, वेट क्या होता है, एक अभी हम जो अरे ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करते हैं वो एक फॉर्मेट में स्टोर होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया? फिक्स साइज फॉर स्ट्रिंग। ये टॉपिक क्या है? फिक्स साइज फॉर स्ट्रिंग। तो इसकी साइज कितनी है? फिक्स 10, सॉरी हाँ 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग की साइज है, तो यहाँ पे 9 स्लॉट्स रहेंगे। ओके, 0 to 9, दीज आर 10 कैरेक्टर। सो यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे जॉन में कितने कैरेक्टर्स है? JOHN 4 कैरेक्टर्स, एंड स्लैश 0 इज नल कैरेक्टर। ओके, इट इज फिक्स। ओके, मतलब स्लैश 0 आपको स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए लगाना पड़ता है, आप हमने स्टार्टिंग में ही देखा। ओके, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग, उसमें हमने स्लैश 0 क्या होता है वो देखा, नल कैरेक्टर। ओके, सो JOHN these are 4 characters and slash 0 is 5th character। so इसमें 5 ही कैरेक्टर है। ओके, देन 5 कैरेक्टर की जगह यहाँ पे empty है। ओके, देन जेन में देखो JANE and slash 0 these are only 5 characters and 5 character space is empty। then DOE and slash 0, okay, here are 4 characters and 6 character space is empty। सो अगर आप सपोज कुछ डिजाइन करते हो, कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, और अगर आपने स्ट्रिंग की साइज 10 ली। ओके, स्ट्रिंग नंबर ऑफ मतलब साइज ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स
नंबर अगर आपने 10 लिया तो आपकी स्पेस एम्प्टी जाती है, मतलब 10 नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन अलग अलग स्ट्रिंग होंगे तो आपकी साइज, ये साइज क्या होती है, वेस्ट जाती है। ये स्पेस जो है ये एम्प्टी स्पेस हुई, ये स्पेस वेस्ट हो जाती है। तो इससे सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ओके, दिस क्रिएट अरे ऑफ 3 स्ट्रिंग, हमने देखा ऊपर क्या क्रिएट हुआ, 3 स्ट्रिंग का अरे क्रिएट हुआ। ईच स्ट्रिंग कैन होल्ड अप टू 9 कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, हमने 10 साइज ले लेकिन 9 कैरेक्टर्स क्यों, बिकॉज 10 कैरेक्टर इज रिजर्व फॉर स्लैश जीरो। ओके, आप पूछोगे हमने तो 10 की साइज ली स्ट्रिंग की, लेकिन 9 कैरेक्टर क्यों स्टोर होंगे, क्योंकि स्लैश जीरो के लिए एक 10th कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर रिजर्व होता है। ओके, then second topic is, second point is array of pointer to the string. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, here you can use pointer to string of varying length। अभी हम pointer चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें pointer क्या है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। ओके, here you can use pointer to store string of varying length। ओके, इसमें हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर यूज करते हैं, किसके लिए, स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए। ओके, दिस अलो स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ, ये क्या करता है, डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग को अलो करता है। इट इज मोर मेमोरी इफिशिएंट बिकॉज इट डजंट वेस्ट स्पेस फॉर अनयूज कैरेक्टर। ओके, हम जब कैरेक्टर यूज नहीं करते तो वो स्पेस क्या होती है, वेस्ट जाती है, लेकिन पॉइंटर की हेल्प से वो मेमोरी इफिशिएंट है, उसमें से हमारी स्पेस जो होती है वो वेस्ट नहीं जाती। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर स्टार इंडिकेट पॉइंटर। ओके, स्टार क्या इंडिकेट करता है, पॉइंटर, नेम ऑफ अरे, एंड साइज की जगह पे आपको कुछ नहीं देना है, एम्प्टी रखना है, इज इक्वल्स टू अगेन जॉन जेन एंड डो। ओके, यहाँ पे एग्जांपल अलग है, अरे ऑफ पॉइंटर देखो, देखो। ओके, यहाँ पे क्या है, गीक्स एंड बाय स्लैश जीरो, गीक्स स्लैश जीरो एंड गीक्स फॉर स्लैश जीरो। ओके, अभी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे साइज डिक्लेयर नहीं की, सिर्फ पॉइंटर दिया है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने साइज डिक्लेयर नहीं की, सिर्फ पॉइंटर दिया है, पॉइंटर स्टार से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे स्पेस वेस्ट नहीं गई, यहाँ पे बॉक्स एम्प्टी नहीं, क्योंकि साइज ही डिक्लेयर नहीं किए। डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग हम अरे ऑफ पॉइंटर टू द स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अरे ऑफ पॉइंटर टू द स्ट्रिंग, कि मेमोरी वेस्ट नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये सारी मेमोरी हमारी वेस्ट गई। ओके, so this is the benefit. Then command line argument. What is mean by command line argument? Command line arguments in C are a way to pass information to a program when it is executed. Okay. So let's see. Wait. Sorry for interruption. Let's see command line argument. Command line argument in C are a way to pass information. Command line argument क्या करते हैं, C लैंग्वेज में एक इंफॉर्मेशन पास करते हैं टू प्रोग्राम व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन पास करते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द यूजर, ये आर्ग्यूमेंट्स किससे प्रोवाइड किए जाते हैं, यूजर से, इन द टर्मिनल और इन कमांड प्रॉम्प्ट व्हेन दे रन द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड यूजर से किए जाते हैं। ओके, when C program is executed, the main function can take two special parameter। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मेन फंक्शन क्या करता है, दो पैरामीटर पास करता है। ओके, फर्स्ट वन इज, मतलब फर्स्ट वन इज ARGC। ओके, ARGC एंड पॉइंटर ARGV। आप सिर्फ ARGC और ARGV याद रखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट वन इज ARGC, मतलब आर्ग्यूमेंट काउंट। Okay, it is an integer that represent the number of argument passed to the program। ARGC क्या है, argument count क्या है, एक integer है that represent the number of arguments, मतलब कितने number of argument पास किए गए हैं प्रोग्राम में वो दिखाता है। Okay, it always includes the program name as the first argument। प्रोग्राम का नेम मीन्स फर्स्ट आर्गुमेंट, सो ARGC इज ऑलवेज एटलीस्ट वन होना चाहिए। ओके, देन ARGV, अभी ARGV क्या है, argument vector। It is an array of string character pointers that store all the arguments। Okay, ARGV0 is the name of the program, वो प्रोग्राम का नेम होता है, और path used to it to execute it। Okay, and ARGV1 to ARGC1 are the additional argument provided by the user। These are additional argument। For example, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है। ओके, इसी प्रोग्राम को मैं आपको VS कोड में रन करके दिखाता हूँ। ओके,
सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसे बड़ा करता हूँ। ओके, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। वेट, ओके, यहाँ पे गया। हाँ, ओके, यहाँ पे हमने ARGC एक लिया एंड ARGB एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास हुए। प्रिंटफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स परसेंटेज स्लैश एन एंड ARGC। फॉर लूप यूज होता है, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, आई इज लेस देन ARGC एंड आई प्लस प्लस। प्रिंटफ आर्गुमेंट परसेंट डी परसेंट एस स्लैश एन आई, ओके, एंड ARGB ऑफ आई, एंड लास्ट में रिटर्न 0 क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में नहीं, वॉइड में नहीं है। सो हम इस प्रोग्राम को रन करते, आपको पता चल जाएगा आर्गुमेंट्स कैसे पास होते। वेट, इसे क्लोज, टर्मिनल ओपन, वेट, टर्मिनल, ओके। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हम प्रोग्राम कैसे रन करते हैं आपको तो पता ही है। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, सो जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, ओके, डॉट सी, एंड अभी हम जब प्रोग्राम रन करने के लिए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स डालते हैं, उसके आगे हमें कुछ तो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स हम डालते हैं, सपोज हेलो वर्ल्ड, RLD, ओके। सो आर्ग्यूमेंट 0 क्या आया, आर्ग्यूमेंट 0 आया आपका डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, ओके। देन आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आया आपका हेलो एंड आर्ग्यूमेंट सेकंड आया आपका वर्ल्ड, ओके। दीज आर आर्ग्यूमेंट पास बाय यूजर, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट, आगे प्रोग्राम्स, ओके। यहाँ पे इस चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है एंड हम ये 5 प्रोग्राम्स अभी सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर। आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंड नेम एक्सेप्ट करने यूजर से एंड डिस्प्ले करने, ओके। सिंपल प्रोग्राम है, एक्सेप्ट एंड प्रिंट करने या फिर, ओके। प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको, वेट, ओके, ओके, इरेजर कहाँ पे है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखें तो हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में लिया है हमने, देन करली ब्रैकेट से स्टार्ट, इंटीजर रोल नंबर किस में आते हैं, डिजिट में आते हैं, सो इंटीजर लेना पड़ेगा, RNO हमने वेरिएबल स्टोर किया रोल नंबर, एंड एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा बिकॉज स्टूडेंट नेम किस में आते, कैरेक्टर में नेम, एंड साइज कितनी ली अरे की 20, ओके। 20 साइज तक हम, मतलब 20 लेटर्स तक हम नेम स्टोर कर सकते हैं। देन प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, स्कैन एफ परसेंट डी आएगा, क्यों, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर में है, एंड एड्रेस ऑफ RNO, ओके। देन प्रिंट एफ एंटर नेम, देन नेम के लिए क्या आएगा, परसेंटेज, बिकॉज नेम इज अ स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग के लिए हम क्या लेते, परसेंटेज, और अगर परसेंटेज लिया स्ट्रिंग में तो एड्रेस ऑफ हम नहीं लिखते, डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टोर किया गया है नेम, वही नेम हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते, एड्रेस ऑफ हम लिखते नहीं। देन प्रिंट एफ स्टूडेंट रोल नंबर आर परसेंट डी कॉमा RNO एंड प्रिंट एफ स्टूडेंट नेम आर परसेंटेज कॉमा नेम, ओके। चलो तो फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। वेट, टर्मिनल, ओके। सो gcc file name dot c, okay, then dot slash a dot exe, okay. Enter roll number, okay. Suppose we enter roll number 12, enter name Amit, okay, enter. So student roll number are 12 and student name are Amit, okay. इतना ही हमें प्रिंट करना था। Let's see next program, okay. Write a C program to accept string from user and find the length of string. हमें string की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अभी हमने string प्रीडिफाइंड फंक्शन पढ़े, उसी उसी फंक्शन का यूज करके हमें string की लेंथ फाइंड आउट करनी। सो बताओ string की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, आपको याद है, strlen, ओके, राइट। सो वेट, इरेज करना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड
स्ट्रिंग डॉट एच, अभी स्ट्रिंग डॉट एच क्यों लिया, स्ट्रिंग डॉट एच इसलिए लिया क्योंकि हम str एलियन स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए वो फाइल किसमें स्टोर होती है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में। सो हमें स्ट्रिंग डॉट एच लेना पड़ेगा। देन वॉइड में कर्ली ब्रैकेट, अभी हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग लेंगे 10, और अभी लेंथ किस में आती है, इंटीजर में, तो हमें इंटीजर में एक वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा, हमने किया इंटीजर एलियन। देन प्रिंट एफ एंटर द स्ट्रिंग स्कैन एफ परसेंटेज कॉमा एड्रेस ऑफ नहीं देते स्ट्रिंग में, सो str लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया वही हमें स्कैन एफ में लेना है, सो ये str दिया तो यहाँ पे भी str। देन एलियन इज इक्वल्स टू फंक्शन क्या है, str एलियन फंक्शन, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग नेम, ओके str। देन प्रिंट एफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंट डी, ओके परसेंट डी क्यों, क्योंकि इंटीजर में लेंथ आती है, परसेंट डी कॉमा एलियन, ओके। सो लेट्स रन द प्रोग्राम, okay wait, first I will erase it, okay। so this is your program, हमें इसे रन करना है, wait, okay। gcc file name dot c, gcc len dot c, then dot slash a dot exe, okay। enter string, suppose we enter welcome, so length of string is 7, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, okay। so length of string is 7, okay, like that। then next program is write a C program to concatenate two string, दो string का हमें comparison करना है, okay। so concatenate मतलब comparison, so क्या function है, strcmp, okay right। so again program देखो, hash include stdio dot h, hash include string dot h, because string predefined function यूज कर रहे हैं। देन इंटीजर मेन, ओके वर्ड मेन की जगह क्या लिया, इंटीजर मेन करली ब्रैकेट, एक वेरिएबल स्टोर किया इंटीजर में आंसर, देन टू स्ट्रिंग लिए, क्योंकि टू स्ट्रिंग क्यों लगेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करनी है, तो कंपैरिजन के लिए कितने स्ट्रिंग चाहिए, दो स्ट्रिंग चाहिए। देन कैरेक्टर str1 str2 साइज ऑफ 2020, ओके। देन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ में स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 दोनों रीड और प्रिंट किए, देन आंसर इज इक्वल्स टू strcmp string 1 कॉमा string 2, ओके। देन इफ लगेगा क्योंकि कंपैरिजन करना है, आंसर इज इक्वल्स टू 0, देन बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, एल्स बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, और यहाँ पे लिया, वेट मुझे इसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे लिया रिटर्न 0 लिया, क्यों, क्योंकि इंटीजर मेन हमने यूज किया है, अरे ये बड़ा कैसे हो गया, इंटीजर मेन हमने यूज किया है तो हमने रिटर्न 0 यहाँ पे यूज किया, ओके। सो इसे हम रन करते हैं अभी, ओपन टर्मिनल, ओपन क्यों नहीं होता शॉर्टकट से पता नहीं, ओके। सो लेट्स सी जीसीसी क्या है, फाइल नेम डॉट सी, ओके, देन डॉट स्लैश 8 डॉट exe, enter string 1 suppose hello, enter string 2 world, okay world, both string are not equal, okay like that। then next program is write a C program to accept string from user and convert string into uppercase, हमें string accept करनी है user से और हमें वो uppercase में string convert करनी है, ओके। सो प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगेन stdio.h के साथ क्या लिया, string डॉट एच, बिकॉज स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। देन void में करली ब्रैकेट से स्टार्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग साइज ऑफ 10, देन printf में स्ट्रिंग printf में एंटर द स्ट्रिंग एंड scanf में परसेंटेज कॉमा str, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने str लिया, ओके। एंड फंक्शन क्या है, str upr अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए एंड str, then printf upper case string is percentage comma str and last curly bracket से end of the program, okay closing। सपोज अभी हम क्या करते, आप पूछोगे str क्यों लेते, सपोज हमने यहाँ पे लिया नेम, तो हमें कहाँ पे नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नेम डालना पड़ेगा str की जगह, ओके। यहाँ पे भी हमें नेम डालना पड़ेगा फंक्शन में नेम, और यहाँ पे भी हमें नेम डालना पड़ेगा, सो लाइक दैट। देन प्रेस Ctrl S फॉर सेव, देन ओपन द टर्मिनल,
Okay, gcc filename.c upr.c, then /a.exe, enter string, suppose welcome. सो ये देखो अपर केस में ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई. सो like that this program, then write a C program to accept string from user and convert into lower case. Okay, ये प्रोग्राम आपको होमवर्क में करना है. ओके, सिर्फ अपर केस की जगह क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है. ओके, सो फंक्शन क्या है, strlwr. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर. ओके, आई होप दैट आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया हो. पूरे के पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इस लेक्चर 2 पीडीएफ आएगी इस वीडियो के बाद. एक फुल चैप्टर कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ, मतलब जो पीपीटी की स्लाइड्स है उसी मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, एंड एक पीडीएफ आएगी लेक्चर नंबर 3, मतलब इस लेक्चर की एक पीडीएफ आएगी. ओके, so notes available on telegram channel, and telegram channel link is available in description box. Okay, so please join the telegram channel as soon as possible. Okay, for note section. Okay, so this is sufficient for today. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.